Hello and welcome to The Print. I am Iram Siddiqui and today we are standing in Karera constituency of Madhya Pradesh. Here, Malkhan Singh, once a dreaded dacoit roaming the ravines of Gwalior and Chambal, is now drumming up support for the Congress party. Politics is not new for Malkhan Singh, who surrendered before the Arjun Singh's Congress government in 1982. Having served 6 years in prison, Malkhan joined politics, being affiliated with various political parties, including the Bharatiya Janata Party. It was recently that he joined the Congress and has now been campaigning extensively in the Gwalior-Chambal region. At Khiria village, amongst those that have come to greet Malkhan Singh include a 95-year-old Narayan Parihar, a resident of Khiria village. Malkhan's convoy of boleros comes to a halt outside the house of Sarpanch Ram Manohar Parihar in Khiria. Ram Manohar Parihar, who was once affiliated with the Congress party, died of a sudden heart attack. This is Malkhan's first stop for his campaign in Karera. Malkhan Singh reminds the people of Khiria village of Ram Manohar's affiliation with the Congress and urges them to come together and support the incumbent Congress MLA Pragilal Jatav and get him re-elected. As villagers of Khiria complain about the lack of development under Paragilal Jatav, Malkhan is quick to remind them that Paragilal, despite being the sitting MLA, wasn't able to do much as Congress is now in the opposition. He, however, urges that things will change once Paragilal is re-elected as Congress is headed to form the government in Madhya Pradesh. And with this, he says that the party will lead the region under Kamal Nath towards development for all. The people are happy to see Malkhan and his words count for them. Malkhan Singh is moving from one village to the other, talking about the injustice meted to people, their land being grabbed, and the poor law and order situation, especially when it comes to the safety of women. It's not just in Karera, but he's moving all along the Gwalior-Chambal region, especially on the seats that have a sizable Thakur community vote to which he belongs. Malkhan Singh, who was once with the BJP for nearly a decade and joined the Congress just 2 months before the election, talks about the difference between the two parties. भाजपा की पूंजीपत पार्टी है, बड़े बड़े लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी हमेशा सत्ता की पार्टी रही। इंदिरा गांधी से लगाए तो गरीबों की पार्टी रही। भाजपा की पार्टी 20 साल से आई, सारा बेच दिया, ट्रेन बेच दी, ऑफिस बेच दिए, बैंक बेच दी, पूरे देश को सारी चीजें बेच दी इनने। इतने कर्जदार किसान हो चुका है, कर्ज से डूबा है, इसके बाद कौन इसका देगा? मुख्यमंत्री दुनिया का पैसा निकाल के लाडली लक्ष्मी योजना का, हम गांव गए, काऊ बहन बेटी को पैसा ही नहीं मिला, झूठ बोलते। Once accused of murder and kidnapping, with nearly 100 cases against him, Malkhan Singh today strongly criticizes the law and order challenges and accuses the BJP of grabbing the land meant for the poor. ये भाजपा का काम है, जमीन को हड़पना, ये सब भाजपा का काम। शिवपुरी गुना से लगाएगा, अशोकनगर से देखिए आप, तो ये सब भाजपा का काम है। आज बहन बेटी के साथ में अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, तो भाजपा रोक नहीं पाई। आप हिंदुस्तान की पार्टी बताते हैं, ईमानदार पार्टी बताते हैं, धर्म की पार्टी बताते हैं, तो हमारी बहन बेटी सुरक्षा क्यों नहीं? हमारी बहन बेटी के साथ में अत्याचार क्यों हो रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है? ये सब इसके लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है और कांग्रेस सत्ता में बैठाना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ की जनता भोली भाली है, और पहले भी विधानसभा में जो मतलब प्रत्याशी चुना गया था प्रागीलाल को, आज वर्तमान में विधायक भी है। अब दूसरी बार जो चुनाव हो रहा है, फिर भी जनता की रुझान है प्रागीलाल के ऊपर। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल तक रही और जहाँ अन्याय से जुड़े रहे। अन्याय करेरा की जनता क्या है, बहुत सीधी सच्ची जनता है, ईमानदार जनता है, और उसके साथ क्या है कि शासन प्रशासन से लाभ नहीं मिल पाता। यहाँ के अन्याय ज्यादा होते हैं, उनको सुनाई नहीं होती, चाहे वो पटवारी को देखें, चाहे वो थाने को देखें, चाहे आप तहसीलदार को देखें। जनता का, किसान का काम तो थोड़ा ही है, जब ज्यादा काम बड़ा काम नहीं है, इसका थोड़े मैटर से जनता को परेशान किया जाता है। तो मैं चाहते हैं कि भ्रष्ट सरकार को, निकम्मी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को जनता खत्म कर रही है।
2023 में, और भारतीय जनता पार्टी को खत्म होने के बाद कांग्रेस सत्ता में बैठेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेगी। उसके साथ साथ में प्रयागीलाल जाके फिर विधायक चुने जाएंगे और चुनने के बाद फिर मंत्री बनेंगे, और मंत्री बनने के बाद जनता की फिर भी सेवा करेंगे। ये हमारा कहने का मतलब। ग्वालियर चंबल अंचल का जो स्वभाव है थोड़ा मिलिटेंट है, एग्रेसिव स्वभाव है। तो यहाँ लोग बोली और गोली दो ही बातों से, दो ही तरीकों से बात करते हैं, और ये लगभग हर डाकू गिरोह के साथ ये रहा गया। तो किसी ने पटवारी ने उसकी जमीन दूसरे के नाम चढ़ा दी, या उसको जाति अपमान कर दिया, या कोई सार्वजनिक संपत्ति है, मंदिर है, या कुछ इस पर कब्जा कर दिया, तो ये लोग उसके खिलाफ लड़े। और अगर पुलिस ने इनकी मदद नहीं की तो इन लोगों ने बंदूक उठा ली। अब बात जहाँ तक मलखान सिंह की है, तो मलखान सिंह बहुत किशोर अवस्था में डकैत बना। हालांकि अधिकांश जो डकैतों की उम्र होती है वो 20 से 40 साल की होती है। मलखान सिंह जब डकैत बना तो इसकी उम्र 18-19 साल की थी, और गांव के एक सरपंच थे, बिलाव गांव है भिंड जिले में, जहाँ का ये रहने वाला है। वहाँ एक सार्वजनिक जमीन थी मंदिर की। यहाँ मंदिरों के रखरखाव के लिए स्टेट के टाइम से ज़मीनें लगाई जाती हैं। उस ज़मीन को लेकर विवाद था, उसमें उसको जाति अपमान सहना पड़ा, उसके परिवार को सहना पड़ा। तो उसने फिर अंत में जब कहीं से उसे कोई मदद नहीं मिली, पुलिस से, प्रशासन से, नेताओं से, तब उसने बंदूक उठाई और वो जो कैलाश शर्मा सरपंच थे उनका सरेआम मर्डर भिंड शहर में तो जब वो अदालत जा रहे थे तब कर दिया। और उसके बाद लगातार हत्या की वारदातें की उसने अपना गिरोह गठित कर दिया, और गिरोह का आतंक धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मध्य प्रदेश की पुलिस को उसके ऊपर जो इनाम रखा जाता है गिरफ्तारी या पकड़ने को लेकर, वो बढ़ाकर 1 लाख तक करना पड़ा। और इस आतंक के चलते उसने जो अपने संपर्क हैं वो मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक बना दिए थे। लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम हो कि डकैतों की उम्र 1 दशक से ज़्यादा नहीं होती, तो बीहड़ का जीवन बहुत कठिन जीवन होता है। लगातार पुलिस से सामना करना पड़ता है, भागते रहना पड़ता है। तो इस जीवन से आजिज होकर के मलखान सिंह ने तत्कालीन भिंड के एसपी थे राजेंद्र चतुर्वेदी, और उनकी पत्नी थी दीपा चतुर्वेदी, उनके माध्यम से समर्पण की बात चलाई। और एक लंबी 1-1.5 साल की बातचीत के बाद अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री काल में उसने भिंड में अपने गिरोह के साथ समर्पण कर दिया। और इस समर्पण के बाद फूलन देवी के गिरोह का भी उसने समर्पण कराया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जितने मुकदमे उसके खिलाफ थे, करीबन 100 के ऊपर मुकदमे थे, उनमें अधिकांश में मुकदमे चलाए गए और उनमें सब में बरी कर दिया गया। किसी में कोई उसको फांसी की सजा नहीं हुई, फिर भी 6 साल उसे जेल में रहना पड़ा। जब वो जेल से वापस लौटा तो उसे लगा कि समाज की मुख्य धारा में वापस आना चाहिए, और समाज में मुख्य धारा में वापस आने का एकमात्र तरीका राजनीति होती है। तो तब तक तो फूलन देवी समाजवादी पार्टी में सक्रिय हो चुकी थी, सांसद बन गई थी। तो मलखान के मन में भी आया कि क्यों ना वो भी राजनीति करे। तो उसने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, विधायक का चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली। उसके बाद समर्पण के समय उसे गुना जिले में जो शासन की ओर से ज़मीन मिली थी, वहाँ आरोन एक गांव है उसके आसपास, वहाँ उसने अपनी खेती बाड़ी करने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं है। लेकिन इस अंचल में जो समर्पित डकैतों की एक बड़ी फौज थी, जैसा कि मैंने बताया 72 में हुए, 68 में हुए, बाद में 80 के बाद भी होते रहे। इन सब डकैतों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों ने करना शुरू किया, लोगों को डराने, धमकाने, बूथ कैप्चरिंग करने में। तो उसका फ़ायदा भी मलखान सिंह ने उठाया, और तमाम राजनीतिक दलों के लिए, उसमें कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी दल हो, बहुजन समाज पार्टी का भी नाम आता है, सबके लिए काम किया। लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि वो फूलन की तरह चुनाव जीत करके समाज में खड़ा नहीं हो पाया। अब उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 73 के आसपास होने वाला है। फिर भी उसके मन में ये अंतिम इच्छा है कि किसी भी तरह एक बार तो विधानसभा पहुँचे, और इसीलिए लगातार वो कोशिश करता है कि चुनाव लड़े। उसकी पत्नी भी सरपंच का चुनाव लड़ी, निर्विरोध जीती। तो समाज में अब स्थितियां बदल रही हैं। डकैतों को उस नज़र से नहीं देखते कि ये अपराधी हैं, उन्हें अब माना जाता है कि ये भी समाज के एक अंग हैं और इन्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिए। वो उस मौके का फ़ायदा मलखान सिंह आज उठा रहा है। Historically, Gwalior Chambal region
had been infested with dacoits. Owing to the topography, the terrain, people who were wanted in various crimes, they used to run away and take shelter in the ravines and the inhospitable regions of Gwalior and Chambal. I remember in 2003 I was SP Guna, and during those days there were so many dacoit gangs like Rambabu Gadaria, Dayaram Gadaria, Nirbhay Singh Gurjar, Jagjeevan Parihar, Kamal Singh Rawat, Hazrat Rawat. So, and I remember how the whole economy was suffering and people were terrified of the dacoits. And Gwalior, Bhind, Morena, Shivpuri and Guna, most of the police forces were always involved in the anti-dacoity operations and jungle ops. But over the periods, the police have been largely successful in controlling and eliminating the dacoity menace. As a result, as on today, in Gwalior and Chambal, there are no listed dacoit gangs as such, and probably there may be multi-factors which contributed to the elimination of dacoits. One was the growing economy, whereby there was a lot of economic activity going on, good connectivity of roads, industrial growth has been there, technology has come about, and people wanted to be a part of this economic development. That could be one reason. And secondly, because of the police actively undertaking such kind of operations, and I think the menace was able to be curbed. For many in the Gwalior Chambal region, Malkhan is still someone who is a well-intentioned man and was pushed to pick up arms against oppression. According to Rakesh Achal, Malkhan continued to engage with the society and developed an image of Robin Hood, which led him to remain relevant even after all these years. देखिए, मलखान सिंह ने जब समर्पण किया उसके पहले से उसने आपराधिक वारदातों में बहुत कमी कर दी थी, और वो समाज में जैसे रॉबिन हुड होते हैं उसके लिए आदर्श थे, मान सिंह जैसे डकैत थे, तो उनकी तरह उसने काम किया। गरीब परिवारों में आर्थिक मदद की, शादियों में, इलाज के लिए, और लोगों के यहाँ मृत्यु हो जिस समय बहुत होते थे उनमें मदद की। कोई मान लीजिए सरकारी अमला है, पटवारी यहाँ सबसे ज़्यादा समाज का दुश्मन होता है, पटवारी प्रताड़ित कर रहा है तो उसके पक्ष में वो पीड़ित के पक्ष में खड़ा होगा। इस तरह से उसने धीरे धीरे अपनी छवि रॉबिन हुड की बनाने की कोशिश की। हालांकि रॉबिन हुड बन नहीं पाया, क्योंकि उसके पास न तो उतनी संपत्ति थी दूसरे डकैत गिरोहों की तरह, और न ही उतना बड़ा नेटवर्क था। लेकिन समाज में लगातार उसकी पकड़ बनी रही, क्योंकि उसने आना जाना नहीं छोड़ा। चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे सामाजिक मंच हो, वो लोगों से खुलकर और निसंकोच, उसके मन में कोई अपराध भाव नहीं था कि मैं डाकू था इसलिए मैं नहीं मिलूँ। खुलकर लोगों से मिलता था, आज भी मिलता है, इसलिए वो समाज में लोकप्रिय है और लोग उसी तरह से उसको अब सम्मान भी देते हैं। दूसरी बात एक और है कि मलखान सिंह एक ईमानदार आदमी है। ईमानदार कैसे हैं कि बागी जो हुए उस टाइम में, तो बागी होने का कारण ये था कि जहाँ लोगों के अन्याय अत्याचार इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुए, तो इसलिए इन्हें जंगल की शरण ली, और जो ऐसे लोग थे उनका इन्हें विरोध किया, और इसके बाद में फिर वो सिलेंडर भी हुए, राजनीति में आए, और यहाँ से चुनाव भी लड़ गए एक बार वो, और अच्छे वोट मिले थे, तो थोड़े से मतों से वो हार गए। According to Gurjar, today, with Madhya Pradesh heading for the assembly polls, Malkhan is playing a crucial role in uniting the people of various communities to come together and vote for the Congress party. समाज के लिए ये मालूम है क्योंकि अन्याय अत्याचार का विरोध करने वाले हैं, इसलिए अच्छे लोग हैं, तो इसलिए उनको मानते हैं। Malkhan Singh has been campaigning in the Gwalior Chambal region that holds 34 of the 230 seats in the Madhya Pradesh Assembly. In the 2018 election, the Congress with Sindhya in their camp had won 26 out of these 34 seats and formed the government with a very narrow majority. What remains to be seen is if the Congress, using these techniques, will be able to repeat their 2018 performance, and this time without Jyotiraditya Sindhya.